Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 5th chapter of the Usher in book, the English literature book of standard 3, Usher in book, and it is the 5th chapter. The name of the chapter is The Dog and Donkey. Once there lived a washerman on the river banks of the river Yamuna. He had a donkey and a dog. Every day he went to the riverside with a bundle of dirty linen to wash. The donkey carried the bundle on its back to the river. In the evening he carried the washed clothes back home. The donkey did the work well and the master was happy with him. The dog remained at home only. Its duty was to protect the house. Whenever anybody came to the house, it barked. The dog did not allow anybody to enter the master's house without permission. As the dog was very faithful, the master loved it. In the evening, he patted it. The donkey saw all this. He had a feeling that the master loved the dog more. He was upset about his master's favor to the dog. One day it said to the dog, "My dear friend, why does our master love you more and give you better food? I am doing a lot of work. You are simply sitting at home." एक बार एक धोबी होता है, कपड़े धोने वाला, ठीक है। वह यमुना नदी के किनारे पे जो है वह वहाँ पे कपड़े धोता था, ठीक है। वो वहाँ रहता था, यमुना नदी के किनारे वह रहता था और वहीं पे वह कपड़े धोता था। उसके पास दो पालतू जानवर थे, एक गधा और एक कुत्ता, डोंकी एंड डॉग। हर दिन वह नदी के साइड में जाता था और एक गठरी पूरे बिना धुले हुए कपड़े लेके जाता था उन्हें धोने के लिए। हाँ, गंदे कपड़े लेके जाता था उन्हें धोने के लिए। और जो है वो कपड़ों की गठरी क्या करता था, डोंकी के पीठ पे लाद देता था और उसे लेके वह नदी के साइड में जाता था, ठीक है। शाम के समय वह सारे धोए हुए कपड़े को सुखा के उन्हें फोल्ड करके डोंकी की पीठ पे रख देता था और लेके वापस आता था। डोंकी अपना काम बड़े अच्छा से करता था, सारा भार ढो के लेके जाता था, सारा भार लेके आता था। और जो उसका मास्टर था, वह वाशरमैन, वह धोबी, वह उससे बहुत ही खुश रहता था। इधर जो कुत्ता था, डॉगी जो था, वह डॉग घर पे ही रहता था। उसको क्या ड्यूटी दिया गया था, उसका क्या काम था कि वो घर की सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा घर को। जब भी कोई घर पे आता, कोई अनजान आदमी, तो कुत्ता भौंकता, ठीक है, बार्क करता। कुत्ता किसी को अलाउ नहीं करता अपने मास्टर के घर में घुसने के लिए बिना परमिशन के। जो मास्टर से परमिशन लेके आएगा वो ही उस घर में एंटर कर सकता था, ठीक है। डॉग बहुत ही फेथफुल था, मतलब बहुत विश्वास पात्र था, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो मास्टर है, वह धोबी है, जो वॉशरमैन, वह डॉग को बहुत ही प्यार करता था। शाम के समय वह उसके पीठ को थपथपाता था, ठीक है। यह सब देखकर जो है डोंकी को यह फीलिंग होता था कि डॉग को मास्टर ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। और यह बात सोच सोच के वो बहुत अपसेट रहता था, परेशान रहता था कि मास्टर डॉग को इतना फेवर क्यों करते हैं, उसे इतना मेरे से ज़्यादा क्यों उसे पसंद करते हैं। एक दिन उसने कुत्ते से कहा, "मेरे प्यारे दोस्त, मास्टर तुम्हें ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं और तुम्हें बेहतर खाना भी क्यों देते हैं? मुझे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। मैं तो बहुत काम करता हूँ, तुम तो सारा दिन सिर्फ घर पर ही बैठे रहते हो।" डॉग ने कहा, The dog said, "My dear friend, my duty is to protect the house. Your duty is to help the master in his work." "Then why does he love you more?" said the donkey. "It's because the dog is man's best friend," said the dog proudly. The donkey was not satisfied. It was always thinking of the master's favor to the dog. To protect the house is a very easy job, the donkey thought. I can also guard the house. Days passed. One night, the donkey and the dog were talking. They saw a thief trying to enter the compound. The dog saw the thief and was about to bark, but the donkey stopped the dog, saying, "Today I will prove that I can also guard the house." The dog started braying. The thief feared the people would wake up, so he ran away. The donkey became very proud. He proved that he could also guard the house. In a happy mood, the donkey started braying again. जब डोंकी ने डॉग को पूछा कि मास्टर तुम्हें ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, तुम्हें बेहतर खाना क्यों देते हैं, तुम्हें ज़्यादा प्यार भी क्यों करते हैं, जबकि तुम सारा दिन घर पे ही खाली बैठे रहते हो, तो डॉग ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरा काम है घर की सुरक्षा करना, घर को प्रोटेक्ट करना, और तुम्हारा काम है कि तुम मास्टर को उसके काम में मदद करो। तो डोंकी ने कहा, तब फिर भी वो तुम्हें ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? तो डॉग ने अभिमान के साथ कहा, घमंड के साथ कहा, क्योंकि एक कुत्ता जो होता है वो मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसीलिए। डोंकी इस आंसर से संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता था कि मास्टर इतना फेवर डॉग को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर उसकी तरफ ज़्यादा झुके हुए क्यों हैं। वो सोचता कि घर को प्रोटेक्ट करना, घर की रक्षा करना तो बहुत ही आसान जॉब है, मैं भी घर को गार्ड कर सकता हूँ। बहुत दिन बीत गए। एक रात डोंकी और डॉग दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वो लोग देखे कि जो है एक चोर जो है वो घर के कंपाउंड के भीतर, घर की बाउंड्री के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त उस चोर को देखकर डॉग जो है वो भौंकना
स्टार्ट करने वाला था। हाँ, सोचा कि मैं अभी बार्क करूँगा, पर डोंकी ने उसे रोक दिया और बोला कि आज मैं तुमको ये साबित कर दूंगा कि मैं भी घर को गार्ड कर सकता हूँ, घर की पहरेदारी कर सकता हूँ। डोंकी ने ब्रे करना शुरू किया। हाँ, द डोंकी स्टार्टेड ब्रेइंग, मतलब जैसे डोंकी की जो आवाज़ होती है वैसे उसने आवाज़ रेंकना जो कहता है, डोंकी रेंकने लगा, अपनी आवाज़ निकालने लगा ज़ोर ज़ोर से। ये चोर पूरा डर गया कि कहीं लोग उठ नहीं जाए और वह भाग गया। डोंकी की बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है ना, चोर डर गया कि कहीं लोग डोंकी की आवाज़ सुनकर उठ ना जाए, वो भाग गए। डोंकी भी बहुत अभिमान से भर गया जब उसने देखा चोर भाग गया। उसने यह साबित किया कि वह भी घर को गार्ड कर सकता है और वो बहुत ही खुश हो गया और हैप्पी मूड में वो फिर से रेंकने लगा। ठीक है, फिर से वो ही स्टार्टेड ब्रेइंग अगेन। The master got up hearing the donkey braying. He was very tired that night after a day's hard work. He got angry because he was disturbed by the donkey. He came out of the house. When the donkey saw him, it gave out a long sound proudly. The angry master thrashed the donkey with a long stick and went back to bed. In pain, the donkey asked himself, "What mistake have I done? I drove the thief away, didn't I?" The dog went to the donkey. It said, "My dear, everyone has got his own duty. It's not your duty to guard the house, is it?" Donkey realized his mistake and started doing his work without any complaint. They lived happily thereafter. ठीक है, तो डोंकी बहुत ही खुश हो गया, अभिमान से भर गया और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। उस रेंकने की आवाज़ सुनकर उसके मास्टर की नींद टूट गई, उस वॉशरमैन की नींद टूट गई और सारे दिन कड़ी मेहनत कर कर वह काफ़ी थक चुका था और सोना चाह रहा था, पर जब उसकी नींद टूट गई तो वह बहुत ही नाराज़ हो गया। वो डिस्टर्ब हो गया था नींद से, वो बहुत नाराज़ हो गया। वह घर से बाहर आया, उसको देखकर डोंकी और भी खुश हो गया और उसने बहुत लंबी सी एक आवाज़ निकाली, घमंड से पूरी लंबी सी आवाज़ निकाली डोंकी ने। तो मास्टर तो पहले से ही गुस्से में था, अभी और भी गुस्सा हो गया। उसने एक लंबी छड़ी उठाई और ही थ्रैश्ड द डोंकी, उसने डोंकी को उससे अच्छी सी पिटाई कर दी और वापस सोने चला गया। डोंकी को बहुत पेन होने लगा और उतने दर्द में डोंकी ने अपने आप से पूछा कि मैंने आखिर क्या गलती कर दी है, मैंने तो चोर को भगाया, क्या मैंने नहीं भगाया? उस वक्त वह कुत्ता डोंकी के पास गया और कहा, मेरे प्यारे, सबका अपना अपना ड्यूटी होता है, अपना अपना काम होता है। तुम्हारा ड्यूटी घर को गार्ड करना नहीं है क्या? नहीं है ना? डोंकी को अपनी गलती समझ में आ गई और उस दिन के बाद से वह अपना काम अच्छे से करने लगा, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना दुखी हुए वह अपना काम अच्छे से करने लगा। उस समय के बाद से दोनों, डोंकी और डॉग और उसके मास्टर, तीनों खुशी खुशी रहने लगे। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अच्छी स्टोरी थी, अच्छा मैसेज भी देता है कि सबको अपना काम मन लगा के करना चाहिए। ठीक है, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आप लोगों ने से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। ओके, थैंक यू।